Hello guys, how are you? So today we are starting with the series of geography lectures and this is the lecture 1 in which we are starting with the universe. Yes, why we are starting with the universe? Just try to understand this. Our subject name is geography. Our subject name is geography. Geography, it is made up of two words, geo plus graphy. Geo means earth. Geo means earth, and later we will try to understand why the name geo is given to earth, and graphy is come from the word graphos, that means the description. So geography is nothing but the description of the earth. Yes or no? Now, earth is a part of our solar system. Earth is a part of our solar system, and this solar system is part of universe. This solar system is part of universe. To to understand about the earth, हमें अर्थ के बारे में अगर जानना है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. यस और नो? सो before starting the universe, there are several theories. When you will open your class 11th NCRT, physical geography NCRT chapter number 2, you will find there are several theories mentioned over there. So we will try to cover one by one each theory in very detailed format. These theories are very important. Why these are very important? जब हम पढ़ेंगे geomorphology, when we will go and try to understand the climatology, oceanography, the mineral regions of the world, we have to we must have knowledge of the earth, that how this earth is made up of, how this universe is made up of, what is inside the earth. Then only we can continue with that. Okay, so let's start with this theory. The name of this theory, the first theory which we are going to study, is nebular hypothesis. Now try to understand nebular hypothesis. What is hypothesis means? See, there are two things. One is theory and another thing is hypothesis. Hypothesis and theory, they the similarity between the hypothesis and theories are that they are not proven yet. अभी तक ये प्रूव नहीं हुए हैं, अभी तक ये साबित नहीं हुए हैं. We they are on paper, but practically we don't know whether these are correct or not. अगर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं. इन दैट केस हमने अभी क्या कर दिया, इसको लॉ में बना दिया. दैट मीन्स नाउ दिस थिंग हैज प्रूवन. तो दिस इज गैसियस हाइपोथेसिस. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इनिशियली क्या हो रहा था यार, समझो. देयर आर सेवरल थ्योरीज विच आर कमिंग अप, एंड इनिशियली जो थ्योरीज थी वो केवल किसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी? दे आर ओनली एक्सप्लेनिंग आवर सोलर सिस्टम, द ओरिजिन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हाउ दिस सोलर सिस्टम working, how it is performing. So initially when this theories related to solar system are coming, the theories can be divided into two parts. One was, the earlier theory was known as geocentric theory, and the later theories were known as heliocentric theory. They are known as heliocentric theory. Geocentric means, geo means earth, that means earth centric theory, earth centric theory, and this is nothing but the sun centric theory. इनिशियली क्या था, बहुत सारे लोग ये अज्यूम करते थे कि यूनिवर्स का जो सेंटर है या सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो क्या है? अर्थ है, और इस अर्थ के चारों तरफ बाकी चीजें क्या कर रही हैं? रिवॉल्व कर रही हैं. सो द थ्योरीज विच कंसिडर दैट अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम और अर्थ इज एट सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स, दीज थ्योरीज आर नोन एज द जियोसेंट्रिक थ्योरी. And the theories which consider sun at the center, these theories are known as heliocentric theory. ठीक है. अच्छा, कौन सी सही है? Currently we knew that at center of our solar system the sun is present and earth is revolving around the sun. तो कौन सी थ्योरीज करेक्ट हैं? हेलियोसेंट्रिक जो थ्योरीज हैं वो करेक्ट है. ठीक है. अच्छा, जब सोलर सिस्टम के बारे में बात हो गई, नेक्स्ट वी जंप टू, और जो बाद में थ्योरीज आई, दे विल ट्राई टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द
यूनिवर्स। तो स्टार्टिंग में हमारी नॉलेज बहुत लिमिटेड थी एट इनिशियल स्टेज, तो वी आर एक्सप्लेनिंग ओनली द सोलर सिस्टम। बट लेटर जब साइंटिफिक डिस्कवरी होना शुरू हुआ एंड हमारे पास टेलीस्कोप आना शुरू हुआ एंड वी हैव सम नॉलेज ऑफ आवर सेलेस्टियल बॉडीज, तब हम लोग किस पे जंप करना शुरू हुए, सेलेस्टियल बॉडीज में जंप करना शुरू हुए, तो हम यूनिवर्स को जानने की कोशिश करने लगे। तो स्टार्टिंग में जो थ्योरी आ रही थी वो सोलर सिस्टम से रिलेटेड थी। उसके बाद जितनी भी थ्योरीज आएंगी लेटर और मॉडर्न थ्योरीज जो आ रही हैं वो किसको एक्सप्लेन करती हैं, यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती हैं। अच्छा, जब स्टार्टिंग में सोलर सिस्टम की थ्योरीज आ रही थी, they can be categorized into two categories. One is geocentric and another one is heliocentric. Yes or no? Now, our first theory is जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, दिस इज गैसियस हाइपोथेसिस। दिस इज गैसियस हाइपोथेसिस। अभी जितने भी हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे ना, दे आर दीज आर हाइपोथेसिस, दीज आर थ्योरीज, दे आर नॉट प्रूवन। बहुत सारी गलत चीजें भी इन्होंने बताई। तो ये क्वेश्चन आपकी तरफ से स्वाभाविक है ये आना कि वाई, अगर ये गलत हैं, इफ दे आर रॉन्ग, देन वाई वी आर स्टडिंग दीज, वाई वी आर इन्वेस्टिंग टाइम ऑन दीज। तो इस बात को समझना कि बिना गैसियस हाइपोथेसिस समझे हम लोग किसको नहीं समझ पाएंगे, नेबुला को नहीं समझ पाएंगे। नेबुला नहीं समझेंगे तो नेबुलर हाइपोथेसिस नहीं समझ पाएंगे, और अगर नेबुलर हाइपोथेसिस नहीं समझा तो बिग बैंग समझ में नहीं आएगा। एंड बिग बैंग अभी तक सबसे सही थ्योरी मानी जाती है। कौन सी थ्योरी है? वो है बिग बैंग। तो बिग बैंग तक पहुंचने के लिए हमें गैसियस, नेबुलर और क्या क्या समझना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या समझ में आएगा, बिग बैंग समझ में आएगा। तो वो जानने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, गैसियस हाइपोथेसिस। तो लेट्स स्टार्ट विद द गैसियस हाइपोथेसिस। और जनरली अपनी जो क्लासेस रहेंगी उसमें इस तरीके से ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने ही लिखे हैं। ये हैंड रिटन नोट्स पे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई अपन पीपीटीज पे नहीं चलेंगे। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे क्लासेस देखी होंगी, सबके पास पीपीटीज हैं, बट वी आर रनिंग ऑन दीज टाइप ऑफ नोट्स, दीज आर रिटन नोट्स एंड ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो वही मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एंड जो इसकी पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द गैसियस हाइपोथेसिस। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं कि यूनिवर्स, इनिशियल जो थ्योरीज थी वो अर्थ और सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन कर रही थी। बाद में जो लेटर थ्योरीज आई वो कौन सी थी, यूनिवर्स, जियोसेंट्रिक क्या है और हेलियोसेंट्रिक क्या है, वी हैव अंडरस्टूड इन दीज इन द डिटेल। नाउ स्टार्ट विद आवर गैसियस हाइपोथेसिस। स्टार्ट विद द गैसियस हाइपोथेसिस। सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी है ये दी किसने थी हमको, तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द कांत। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द कांत। कांत इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। कांत को आप अगर यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो ज्योग्राफी ऑप्शन में आपको कांत साहब मिलेंगे। इफ यू आर स्टडिंग जीएस पेपर 4 दैट इज एथिक्स, वहाँ पे आपको कांत मिलेंगे। इफ यू आर स्टडिंग पॉलिटी, वहाँ पे भी आपको कौन मिलेगा, कांत मिलेगा। मैथमेटिक्स में आपको कौन मिलेगा, कांत। तो कांत बहुत ही बड़े स्कॉलर हुए, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी। और जब कांत साहब थे तो ऐसे सब्जेक्ट का डिवीजन नहीं था, इसलिए कांत ने ज्योग्राफी में भी थ्योरी दी, एथिक्स में भी दी, पॉलिटी में भी दी। तो कांत साहब क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करना। कांत साहब कह रहे हैं कि एट इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें, कांत साहब कह रहे हैं जब स्टार्ट हुआ यूनिवर्स तो स्टार्टिंग में बहुत सारे क्या प्रेजेंट थे, प्रीमॉर्डियल मैटर ये प्रेजेंट था। कब प्रेजेंट था ये, जब यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ तभी से ये प्रेजेंट है, प्रीमॉर्डियल मैटर। अब आप कहोगे सर ये प्रीमॉर्डियल मैटर क्या है? प्रीमॉर्डियल मैटर का मतलब है इनिशियली जो मैटर प्रेजेंट था उसको हम क्या रेफर कर रहे हैं, प्रीमॉर्डियल मैटर रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कुछ समझो कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ गैसेस प्रेजेंट होंगी, और इसको कांत साहब क्या कह रहे हैं, कांत साहब ये कह रहे हैं कि ये क्या है, प्रीमॉर्डियल मैटर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि ये जो प्रीमॉर्डियल मैटर है ये एक दूसरे से क्या करना शुरू हो गया, कोलाइड करना शुरू हो गए। क्या करना शुरू हो गए, कोलाइड। इन प्रीमॉर्डियल मैटर के बीच में बहुत सारा कोलिजन स्टार्ट हो गया। अब समझने की बात यह है कि व्हाई दिस कोलिजन इज हैपनिंग, व्हाई दिस कोलिजन इज हैपनिंग। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज दिस इज पार्टिकल ए and this is particle B and this is the C particle, and they are particle of primordial matter। ठीक है,
ए पार्टिकल, बी पार्टिकल और सी पार्टिकल प्रेजेंट है। वी न्यू दैट एक यूनिवर्सल फोर्स होता है और इस यूनिवर्सल फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? कोई भी दो बॉडी है, उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये भी तो दो पार्टिकल्स हैं ए बी, इन दोनों के बीच में भी कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। बी और सी के बीच में भी कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल। और ए और सी के बीच में भी कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ? ए पार्टिकल कोलाइड हुआ बी के साथ, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा, तो ए बी के पास गया, बी के पास आया, और क्या होना शुरू हुआ यहाँ पे? ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में कॉलिजन स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? कॉलिजन स्टार्ट हुआ। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए कि इफ टू बॉडीज आर हिटिंग ईच अदर, दो बॉडी एक दूसरे से आके टकरा रही हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा? इसको बिल्कुल ऐसे समझ लो कि ये ए कार है और ये बी कार है, ये दोनों रोड पे चल रही थी। रोड पे चलते चलते क्या हुआ? ये एक दूसरे से टकरा गई। क्या हो गई? एक दूसरे से टकरा गई। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे माहौल जो होगा वो गर्माएगा या ठंडा हो जाएगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, अगर इंडिया में ये चल रही हैं तो क्या होगा? टकराएंगी, कोलाइजन अगर होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और जनरली भी मजाक को साइड में रख के अगर अपन बात करें तो जब भी दो पार्टिकल्स टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ड्यू टू दिस कॉलिजन क्या स्टार्ट हो गया वहाँ पे? टेम्परेचर क्या होना शुरू हो गया? टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। किसके वजह से हुआ? कॉलिजन की वजह से हुआ। और कॉलिजन क्यों हो रहा है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यही सब चीज लिखी हुई देखो। लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द प्रीमॉर्डियल मैटर वर स्कैटर्ड इन द यूनिवर्स, दे started colliding against each other due to the gravitational force, and collision resulted in the generation of the heat। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास आइस है, इसको मैं क्या दे रहा हूं? हीट दे रहा हूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इफ you are heating a solid thing, if temperature is given to a solid thing, it will be converted into the liquid state? yes or no? यहाँ पे भी ये हो रहा है। जो प्रीमॉर्डियल मैटर था हमारा, प्रीमॉर्डियल मैटर जो था, that was in the solid state, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये लिक्विड, और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। और क्यों हो रहा है ये? क्योंकि क्या आ गया है वहां पे? अब कौन सा फैक्टर आ गया? हीट फैक्टर आ गया। और ये हीट कहां से आई है? ड्यू टू द कोलिजन। तो कोलिजन की वजह से हीट आई, और हीट की वजह से क्या हुआ? हीट की वजह से पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए? लिक्विड, और फिर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गए? गैस में कन्वर्ट हो गए। तो नाउ वी हैव अ गैसेस पार्टिकल्स। बहुत सारे कौन से पार्टिकल हैं? गैसेस के पार्टिकल हैं। इस गैसेस के पार्टिकल्स ने क्या बनाया? क्लाउड बनाया। क्या बनाया? एक क्लाउड बनाया। और इस गैस के क्लाउड को क्या बोला गया? दिस इज नथिंग बट द नेबुला। तो अब आप समझ में आए कि नेबुला क्या है? नेबुला इज नथिंग बट इट इज अ क्लाउड मेड अप ऑफ द गैसेस। एंड व्हाई गैसेस आर प्रेजेंट देयर? ड्यू टू द हीट, ड्यू टू द वेरी हाई टेम्परेचर। एंड व्हाई वेरी हाई टेम्परेचर? ड्यू टू द collision of the particles of the primordial matter। तो इस वजह से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नेबुला यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। तो नाउ वी हैव अ नेबुला इज नथिंग बट द क्लाउड मेड अप ऑफ गैसेस। अब ये जो नेबुला है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, या मैं कहूँ ये इसका एक्सिस है। ये अपने एक्सिस पे क्या करना शुरू किया? इसने अपने एक्सिस पे घूमना शुरू किया। अपने एक्सिस पे क्या हुआ? घूमना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है आपका क्या होगा कि व्हाई इट इज रोटेटिंग। इसको समझो कि मानो ये रोड है, एक कार इधर से आ रही है ए, और इधर से आ रही है बी कार यहां पे पहुंची, और ए कार यहां पे पहुंची। दोनों का जो बम्पर है वो एक दूसरे से टकराया। बम्पर जो है, गाड़ी का आगे वाला हिस्सा जो एक दूसरे से टकराया। तो आप देखोगे ये जो बी वाली कार है, ये
क्या होगा, इसमें रोटेशन शुरू हो जाएगा, घूमते घूमते हुए आगे जाएगी। यस, बचपन में याद करो, पेन फाइट खेला था, एक पेन दूसरे पेन को जब मारता है तो क्या होता है, दूसरा पेन घूमता हुआ आगे जाता है। बिल्कुल यही तो हो रहा है, प्रीमॉर्डियल मैटर है, जब एक दूसरे से टकराएंगे तो कौन सा मोशन शुरू होगा वहां पे, रोटेशनल मोशन शुरू हो जाएगा। एंड ड्यू टू दैट रोटेशनल मोशन, ये जो नेबुला है ये भी अपने एक्सिस पे क्या करना शुरू कर दिया, इसने अपने एक्सिस के चारों तरफ, एक्सिस के अराउंड क्या करना शुरू कर दिया, रोटेशन स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया, रोटेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओके, यहां तक चीजें एकदम क्लियर है। नाउ समझो कि ये नेबुला था, ये इसका एक्सिस है, और ये बहुत तेजी से क्या हो रहा है, अब घूम रहा है। क्या कर रहा है, घूम रहा है। अच्छा, जब ये घूमेगा, गैस का बना हुआ है ये, तो क्या होगा, ये जो बल्ज है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, एट द सेंटर। ये बल्ज आपको कहां देखने को मिलेगा, एट द सेंटर। इस तरीके से बल्ज क्रिएट हो जाएगा। यस और नो? इसको एग्जांपल से कैसे समझ सकते हो आप, आपने एक बलून लिया, बलून में आपने क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब उस बलून को आपने एक एक्सिस के चारों तरफ क्या करना शुरू किया, घुमाना शुरू किया, तो आप पाओगे एट द सेंटर वो क्या होना शुरू करेगा, बाहर की तरफ निकलना शुरू होगा। और जब आप उसको एकदम उसके टॉप पॉइंट से और बॉटम पॉइंट से देखोगे तो वहां से क्या होना शुरू होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे देखेंगे, जियोइड शेप इसको कहते हैं, और अर्थ भी इसी तरीके से अर्थ का शेप है। तो ये क्या होना लगा यहाँ पे एकदम सेंटर पे, तो इसका बन गया बल्ज। क्या बन चुका है, ये बल्ज यहां पे बन चुका है। धीमे धीमे ये बल्ज बहुत बड़ा होता गया, धीमे धीमे बल्ज क्या होना शुरू हुआ, बड़ा होना शुरू हो गया। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं कि बल्ज हो रहा है, और बल्ज क्या होना शुरू हो रहा है, बड़ा होना शुरू हो रहा है। When the bulge increased its size, the ring started forming one by one and were separated from the middle part of the nebula. क्या हो रहा है, देखो, पहले बल्ज यहां पे था, सेकंड बल्ज यहां पे, बल्ज की साइज क्या होती जा रही है, अगर स्पीड बढ़ती जाएगी, घूमती जाएगी, तो यहां पे आप देख रहे हो ये क्या बनते जा रहे हैं, ये क्या बनते जा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंक्रीज इट्स साइड्स एंड रिंग स्टार्टेड फॉर्मिंग। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन शुरू हो गया, यहाँ पे फॉर्मेशन शुरू हो गया रिंग का। किसका फॉर्मेशन शुरू हो गया, रिंग का फॉर्मेशन शुरू हो गया। तो सेंटर में कुछ पार्ट, और सेंटर के चारों तरफ कुछ पार्ट किसमें है, रिंग में है। क्या अब समझ में आ रहा है कि सोलर सिस्टम कैसे बन रहा होगा, रिंग, सेंटर पार्ट। अब सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, यस और नो? तो देखो, सेंट्रल मास बिकम द सन एंड द रेस्ट ऑफ द रिंग्स बिकम द प्लैनेट्स। रेस्ट ऑफ द रिंग जो बची हमारे, वो क्या बन चुकी है, प्लैनेट्स। तो ये जो बल्जेस जो हम बना रहे थे, दे आर नथिंग बट द प्लैनेट्स। यहाँ क्या बने, प्लैनेट्स बने, और सेंटर पार्ट यहाँ क्या बन गया, सन बन गया। क्या सोलर सिस्टम में ऐसा ही है? सोलर सिस्टम में क्या है, सोलर सिस्टम में एकदम सेंटर में प्रेजेंट है सन, और सन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, प्लैनेट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्लैनेट्स प्रेजेंट है। अच्छा, अब आज से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है यार, ये तो प्लेनेट तो आपने बता दिया, सन भी आपने बता दिया, अब आप ये बताओ मून कैसे बने। भाई अर्थ के पास जैसे मून है, जुपिटर के पास बहुत सारे मून है, सैटर्न के पास भी बहुत सारे मून है, तो ये मून कैसे बने होंगे? तो बिल्कुल जो अभी हमने देखा कि रिंग का फॉर्मेशन हुआ, और रिंग के फॉर्मेशन से प्लेनेट और सन बने, यही वाला सेम प्रोसेस आपको कहाँ करना है, अब प्लेनेटरी लेवल पे करना है। ये प्लेनेट है मानो, प्लैनेट तो कहाँ पहुंच गया, सेंटर में, और प्लैनेट के चारों तरफ फिर से बल्ज बना। इसका मतलब क्या बनेंगे, यहाँ पे भी रिंग का फॉर्मेशन शुरू होगा। यहाँ पे जब जो गैसियस मास है जब कंडेंस होना शुरू हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया उसका मून, और ये क्या है, ये है आपका प्लैनेट, ये है आपका प्लैनेट। यस और नो? तो मटेरियल ऑफ ईच रिंग कंडेंस टू फॉर्म सैटेलाइट्स ऑफ द कंसर्न प्लैनेट। तो अर्थ का मून बना, इसी तरीके से सैटर्न का, जुपिटर का। अब अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाई अर्थ हैज ओनली वन मून एंड व्हाई other planets, or I can say them why Jovian planets or giant planets have many moons। तो हमारे पास जो अर्थ के पास जो मटेरियल प्रेजेंट था, जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा था, that material was in very less quantity, whereas the material which is revolving around the giant or Jovian planets, they are very much very large in numbers। तो वहां पे आपको बहुत सारे मून मिले, और यहाँ पे आपको बहुत कम मून मिले। अच्छा, अब ये this was the theory which was given by the Kant. This theory is known as the gaseous hypothesis. Why it is known as gaseous hypothesis? Because from the solid it is converting into liquid, and from liquid it is converting into gaseous state. That's why it is known as the gaseous hypothesis. Okay, now
कुछ लगा ये थ्योरी क्या है, सही है या गलत है? तो दिस थ्योरी इज नॉट करेक्ट। तो बहुत सारे इसमें क्या होंगे, इसके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, इसके ड्रॉबैक्स होंगे। क्या क्या ड्रॉबैक है? फर्स्ट जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि जो आप कह रहे हो भाई साहब कि प्रीमॉर्डियल मैटर स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, तो इसका सोर्स क्या है ये तो बताओ। फ्रॉम वेयर दिस प्रीमॉर्डियल मैटर केम इनटू द पिक्चर? जब स्पेस है ही नहीं, जब यूनिवर्स बना ही नहीं है अभी तक, तो प्रीमॉर्डियल मैटर आया कहां से? पहला जो क्वेश्चन जो नहीं एक्सप्लेन करवाया। सेकंड जो क्वेश्चन है, जो हमने बताया कि भाई कॉलिजन स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ? कॉलिजन स्टार्ट हुआ। अभी आप जान गए हो कि कॉलिजन किससे स्टार्ट हुआ है। दिस कॉलिजन हैव स्टार्टेड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट कांत वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग। कि कांत बोल रहा है कि कॉलिजन स्टार्ट हो रहा है, यस कॉलिजन स्टार्टेड, बट हाउ दिस कॉलिजन इज स्टार्टिंग? आप और मैं जानते हैं कि कॉलिजन स्टार्टेड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट कांत वाज अनेबल टू एक्सप्लेन इट, कांत ने नहीं बताया था। तो दिस वाज द थ्योरी which is known as the gaseous hypothesis. हर जो टॉपिक होगा उसके लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि 1 और 2 पेज का, 1 या 2 पेज की उसकी समरी आपको मिल जाए, ताकि जब आपको ये नोट्स मिले तो आपने 3 पेज पढ़े, 3 पेज में पूरी थ्योरी कंप्लीट हुई और 1 पेज में आपने क्या किया, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। जैसे गैसियस हाइपोथेसिस गिवन बाय द कांत, प्रीमॉर्डियल मैटर वाज स्कैटर्ड कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कोलिजन रिजल्टेड इन द जनरेशन ऑफ हीट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंड देन nebula started rotating around its axis and create a bulge at the center. Now ring has started forming, and this rings ultimately result into the planets. And how moons were formed, same process you can apply at the planet level. तो हम किसको बता देंगे? मून को बता देंगे। Now, what are the drawbacks? Source of primordial material and how the collision has started. So this was the theory, and this is how we will proceed. Okay, this was the lecture 1. This was the lecture 1 of the part 1. P1 का लेक्चर 1 है ये। P1 दैट मीन्स हम लोग पूरा जो यूनिवर्स वाला पोर्शन है वो P1 है हमारा, और इस P1 में ये L1 है। इसी तरीके से हम सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज है ना। जनरली हम क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं और एनसीईआरटी में बहुत ही वेग तरीके से लिखी गई हैं। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आए। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरी में मिलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी थ्योरी होगी? नेक्स्ट थ्योरी होगी नेबुलर हाइपोथेसिस। ये थी गैसियस हाइपोथेसिस। नेक्स्ट थ्योरी वी विल डिस्कस द नेबुलर हाइपोथेसिस। ओके, सो विल मीट टुमारो। टिल देन, टेक केयर and do not forget to subscribe the channel and share this video to all your friends who are preparing for UPSC or any other competitive exam in which geography plays very significant role. Okay guys, we'll meet tomorrow. Till then, take care. Bye bye.